Awesome. Let's start. So, good evening, everyone. आप सबकी खिदमत में शाम का सलाम अर्ज करता हूँ। How is everybody? आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। And I believe that you have already been blessed by the first session. और मेरा ईमान है कि पहले सेशन से खुदा हमने आपको पहले ही बहुत ज़्यादा बरकत दी है। I was just for a few seconds on line, and I was touched by what Dr. Charles was teaching. कुछ देर पहले ही मैं पहली मीटिंग में था और मुझे खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी है। जो कुछ डॉक्टर चार्ल्स तालीम दे रहे थे, खुदा ने मेरे दिल को छुआ है। What a privilege and honor to learn God's word. और ये कितनी इज्जत और istihqाक़ की बात है कि हमें खुदावंद के कलाम को सीखने का मौका मिला है। Praise God. So, let's come to our session evangelism. आज हमारा जो सेशन है वो है बशारत के ताल्लुक से, किस तरह से बशारत की खिदमत सर अंजाम दी जाए। And we have already started and we learned what is evangelism. चूंकि इस सिलसिले को, तालीमी सिलसिले को हम पहले ही आगाज कर चुके हैं और इस बारे में हम सीख चुके हैं कि बशारत क्या है और किस तरह से उसको अंजाम दिया जाए। And in the very first session, this is what I've been trying that we understand what is evangelism. और पहले ही सेशन से मैं इस कोशिश में रहा हूं कि हम ये सीख सकें कि बशारत दर हकीकत है क्या। Evangelism is all about sharing the gospel. याद रखिए, बशारत का सारा जो दारोमदार है या उसमें जो लुबे लुबा है वो यही है कि अंजील की मुनादी करना। Now, how can we share the gospel unless and until we know what is the gospel? I'm sorry, sir, there was some distortion. No Can you please problem. repeat that? How can we share the gospel until we learn what is the gospel? और ये कैसे मुमकिन है जब तक हम ये सीख न लें कि अंजील दर हकीकत क्या है, हम कैसे बशारत कर सकते हैं। So we learned that gospel is a good news. याद रखिए, जो अंजील है खुशखबरी है। So let me just log in from my cell phone as well, because I Sure, think it is creating some problem. So we may not have any kind of disturbance, right? So I'm going to sure, log in from my cell phone as well. sure. So let me just turn off my video so the data might be more Mhm. effective. Perfect. So Anything you yeah. would like to do is just perfect. So So, fine. so we are talking about the gospel. अब हम अंजील की खुशखबरी के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। Gospel is an announcement. याद रखिए, जो अंजील है वो ऐलान करना है An announcement of a good news. और ये खुशखबरी का ऐलान करना है। And we learned when an heir to the king was born, an announcement was made. और हमने इस बात को सीखा था कि जब बादशाह के यहाँ उसका कोई वारिस पैदा होता था तो वो ऐलान किया जाता था और खुशखबरी सुनाई जाती थी। Number two, an announcement was made when prisoners were set free. और दूसरी बात जो हमने सीखी थी कि ऐलान उस वक्त किया जाता था, खुशखबरी उस वक्त सुनाई जाती थी जब कोई कैदी आजाद होता था। When Jesus
was in the synagogue. Gospel of Luke, chapter number 4, from verse number 18, we learned Jesus took the scripture and he started to read from the book of Isaiah. और हम देखते हैं लूका की अंजील उसके चौथे बाब में कि जब यीशु मसीह इबादत खाना में थे तो उन्होंने ये हवाला जो है वहां पर पढ़ा। The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. और वहां पे उन्होंने ये पढ़ा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। Now, in these verses, we learned that there are 5 damages sin brings in human life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है गुनाह इंसानी जिंदगी में आ गया। 5 damages sin brings. 5 नुकसानात जो हैं वो गुनाह की वजह से आते हैं। And the very first thing we learned that sin brings poverty. Sin brings Poverty impoverishes. ओके। और पहली बात जो हमने सीखी थी कि गुनाह की वजह से गुर्बत आती है। And I shared with you that everywhere I have gone in my life, I traveled, I see how sin brought poverty to humankind. और मैंने आपसे बताया था कि दुनिया भर में जहां कहीं भी खुदावंद अपने कलाम की खिदमत के लिए मुझे लेके गया और मैंने देखा कि किस तरह से गुनाह की वजह से लोग गुर्बत की हालत में हैं। Number 2, sin breaks heart. सिन ब्रेक्स हार्ट। Heart. ओके। और दूसरा जो नुकसान उसमें हम देखते हैं जो कि गुनाह जो है वो दिलों को तोड़ देता है। And everything that I'm talking about is the passage that I gave, the Gospel of Luke, chapter number 4, verse number 18 and 19. और लूका की इंजील उसके 4 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत से मैंने ये हवाला आपके सामने पेश किया है। So, sin brings poverty, sin breaks hearts. और हम देखते हैं कि गुनाह की वजह से गुर्बत आती है और गुनाह की वजह से दिल जो है शिकस्ता होते हैं, टूट जाते हैं। Number 3, sin makes people captive. Sin enslaves them. और तीसरी बात यह है कि गुनाह जो है लोगों को कैदी बना देता है, उनको मुकीद कर लेता है। Number 4, sin blinds humanity. और चौथी बात यह है कि गुनाह जो है इंसानियत को अंधा कर देता है, नाबीना बना देता है। Morally and spiritually, they are blinded. वो इखलाकी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी नाबीना हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। And number 5, we learned that sin bruises humankind or brings oppression. और पांचवी बात जो हमने सीखी थी कि गुनाह की वजह से इंसान जो है वो कुचले जाते हैं, वो अजियत उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है। And I gave a Greek word for the word bruise. और मैंने आपको एक यूनानी लफ्ज कुचले जाने या ब्रूस के लिहाज से मैंने बताया था। And this word is tetros menos. और ये लफ्ज है टेट्रोस मेनोस। And from this word comes word trauma. और इसी लफ्ज से ट्रॉमा लफ्ज निकला है। So oppression
or bruise mean to crush, to break down. तो ऑपरेशन का मतलब है कुचल देना, किसी को मसल देना। And we also learned 4 kinds of traumas. और हमने 4 किस्म के ट्रॉमा के बारे में भी हमने सीखा था। Psychologists tell us today there are 4 kinds. Number 1, childhood trauma. जो माहिर नफ्सियात है वो बताते हैं कि 4 किस्म के ट्रॉमा हैं, और सबसे पहला जो है वो बचपन के लिहाज से है। Some children, they grow up with certain kind of traumas they cannot get rid of. कुछ बच्चे जो बचपन ही से ऐसे ट्रॉमा में, ऐसी नफ्सियाती हालत में चले जाते हैं जिसमें उन के लिए निकलना जो है मुमकिन नहीं होता या आसान नहीं होता। Then there is adulthood traumas. और फिर उसके बाद जो है नौजवानी की हालत में कुछ लोग ऐसे ट्रॉमा में जो है वो चले जाते हैं। They go through certain situations in their life, they go through certain season in their life, and that time is so terrible that they are traumatized and they live in this trauma sometimes for the rest of their life होता if यह है कि they कुछ are not अपने set free. वक्त में, अपनी जवानी की हालत में, वैसी सूरत हाल में, ऐसे हालात में से गुजरते हैं और उन हालात से वो निकल नहीं पाते, और उसका असर सारी जिंदगी उन लोगों की जिंदगी पर रहता है। I wish I had more time that I could talk about the traumas, but since I'm teaching evangelism, I just want to give you just thoughts what Jesus said, that he has come to set those people who are bruised set free, to bring liberty to them. काश कि मेरे पास बहुत सा वक्त होता है, क्योंकि मैं बशारत के ताल्लुक से आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं बहुत सारा आपको इस ट्रॉमा के बारे में बता सकता, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि लोगों को जो है, जो कि कुचले लोग हैं, जो मसले हुए लोग हैं, उनको आजाद कर सकें। This is one reason I teach young people and I tell them Bible is relevant. और यही बात है कि जब मैं बशारत के ताल्लुक से मैं तालीम देता हूं, तो मैं उन्हें कहता हूं इसका ताल्लुक जो है ये कुचलने के साथ है। It is relevant to every age, it is relevant to हम्म। every century, to every culture, it is relevant. जी मेरे अजीजों, इस बात का जो ताल्लुक है, हर एक उम्र, हर एक दौर, हर एक सदी के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए मैं इसके ताल्लुक से मैं जरूर मैं बयान करता हूं। Now, number 3, there is intergenerational traumas. और एक और जो ट्रॉमा है वो है जो नस्लों के माबैन पाया जाता है। You know, one generation, they were traumatized, and then new babies were born, and these babies, they born under that trauma, and this trauma continues. अब होता क्या है कि ये ट्रॉमा जब एक नस्ल उसकी जद में होती है, तो उससे जो नई नस्ल पैदा होती है, तो वो नस्ल के जो बच्चे हैं वो भी उस ट्रॉमा की हालत में आ जाते हैं। In America, in my church, there is a sister. She's in her probably 40s. She has gone through intergenerational trauma. अमेरिका में मेरे कलीसिया में एक बहन है, और वो इस जो नस्ल दर नस्ल जो ट्रॉमा है उसमें से गुजर चुकी है, Until the Lord set her free. और जब तक कि खुदावंद ने उन्हें आजाद न कर दिया, तो वो इसी नस्ल दर नस्ल ट्रॉमा में से जो है वह अजियत बर्दाश्त कर रही थी। Number 4, collective traumas. और नंबर 4 जो है वो है इज्तमाई ट्रॉमा। That means maybe there is a war in a nation, in a country, there is a flooding, there is hurricane, and because of that, the whole community or the whole region or the whole city or the whole country can be traumatized. और इसका मतलब ये है कि उस मुल्क या उस इलाका में
जहां पे कभी कोई जंग हो गई है या कोई समुद्री तूफान आ गया है, या और ऐसा कोई खूनी वहां पे कत्ले आम हो गया है, तो उसकी वजह से चंद लोग नहीं बल्कि पूरा इलाका या पूरा मुल्क जो है उस जद में आ जाता है, और उसकी वजह से वो सारे लोग जो हैं वो उस ट्रॉमा की हालत में आ जाते हैं, जिसको हम इज्तिमाई ट्रॉमा कहते हैं। But it doesn't matter what kind of trauma is that. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस किस्म का ट्रॉमा ये है। Jesus came to bring freedom. और मेरे अजीजों, हमारा यीशु इसलिए है ताकि वो हर तरह के ट्रॉमा से हमें आजाद कर सके। Whatever kind of oppression or depression or trauma we go through in life, जिस Jesus किस्म का भी जो sets us ड्रामा free. और ट्रॉमा हम जिंदगी में से गुजरते हैं, तो खुदावंद हमें जो है वो आजाद करता है। Then we learned, we went through a gospel journey and we learned the word alphabet has six. The word alphabet has six alphabets in this word, and we just went through, we journeyed through, and we learned the gospel. और फिर हमने लफ्ज जो गॉस्पल है उसके जो मुख्तलिफ हरूफ तहजी हैं, 6 हरूफ तहजी उसमें हैं, और हमने देखा कि ये 6 हरूफ तहजी जो हैं, और उनको हमने अलग-अलग हमने देखा कि इनका क्या मतलब बनता है। The alphabet G mean God created us to be with him. और जो इसमें हरूफ तहजी जी है, और उसका मतलब है कि खुदा ने हमें तख्लीक किया ताकि हम उसके साथ रह सकें। आमीन। Alphabet O mean our sins separate us from God. और जो हरूफ तहजी ओ है उसका मतलब है कि हमारे गुनाह ने हमें खुदा से जुदा कर दिया। No, the word S mean sins cannot be removed by good deeds. और एस जो है उसका मतलब है कि गुनाह जो है वो हमारे अच्छे या नेक कामों की वजह से दूर नहीं हो सकता। And word P means paying the price for sin. Jesus died and rose again. आमीन। और पी जो है इसका मतलब है यीशु मसीह ने पे द प्राइस, यानी उन्होंने कीमत अदा की और वो मर गए और मुर्दों में से जी उठे। And the alphabet E means everyone who trusts in him alone has eternal life. और ई इसका मतलब है कि जो कोई भी उस पर ईमान लाता है वो ही सिर्फ निजात पाएगा। And L, the last alphabet, means life with Jesus starts now and lasts forever. आमीन। और एल जो आखिरी जो हरूफ तहजी उसका मतलब है कि यीशु मसीह के साथ जिंदगी का आगाज तो अब होता है, लेकिन ये हमेशा हमेशा की जिंदगी पे रहती है। So we went through, this is what we call the gospel journey. और इन हरूफ तहजी के जरिए हमने एक सफर तय किया, और इसको हम अंजील का सफर कहते हैं। And the purpose is, the goal is that we understand fully and completely what gospel is all about. इन सब हरूफ तहजी को अलग-अलग देखने से का एक ही मकसद था, ताकि हम मुकम्मल तौर पे समझ सकते कि जो अंजील है उसका क्या हकीकी मतलब है। In the first session, I also talked about why the gospel. और पहले सेशन में हमने ये देखा था कि अंजील की क्यों जरूरत है। So it's important, before we share the gospel, we have answers of these two important questions. और ये बहुत जरूरी था इससे पहले कि हम मजीद इसके बारे में सीखते, तो इन दो सवालात का जवाब होना हमारे पास बहुत जरूरी था। Why and what? अ, कि अंजील की क्यों जरूरत है, और अंजील दर हकीकत है क्या। Now, I want to lead you to the Romans road. I want to lead you through the book of Romans. अब मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं कि रोमियो के खत के जरिए हम मजीद इसके बारे में सीख सकें।
So through the book of Romans, Paul's letter to the Romans, we can understand more what gospel is all about. तो रोमियो के खत जो कि पालूस से लिखा है, जब हम उसका मुतालिया करेंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि हम मजीद अंजील की मुनादी के बारे में हम सीख सकते हैं। Number 1, book of Romans, पहली chapter बात, number 3 and verse number 23. रोमियो के खत उसका 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत। For all have हम्म। sinned and fall short of the glory of God. और लिखा, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। Why not let's just read from verse number 21. आए हम 21वीं आयत से हम इसको पढ़ते हैं। When we read from 21, a lot of our questions will be answered. जब हम 21वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत से हमारे सवालात के जवाब हमें इन आयात से हमें मिलेंगे। But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। Now, the word but is very, very important. अब गौर कीजिए कि यहाँ पे लफ्ज लेकिन या मगर जो है वो बहुत ही अहम है। And I want you to understand what the word but means. और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस बात को समझें कि ये लफ्ज मगर यहाँ पे इसका क्या मतलब है। The word but mean that everything before it is cancelled out, what follows. इसका मतलब है कि इससे पहले कि कोई भी चीज जिसको मनसूख किया जाता वो क्या है। Everything before it is cancelled? इससे पहले कि कोई भी चीज मनसूख होती, No. Everything before is cancelled out, what follows. और जब भी कोई चीज मनसूख होती तो उसके बाद फिर क्या है। So, what was cancelled? तो किस चीज को मनसूख किया गया। Now, chapter number 1, the book of Romans tells us that God is the creator. अब रोमियो की खत को अगर पहले बाब को देखें तो हमें पता चलता है कि खुदा जो है वो खालिक है। Now, what Romans they started doing? अब हम देखते हैं कि रोमियो ने क्या करना शुरू कर दिया। The time Jesus came, there was Roman Empire everywhere. हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस रुए जमीन पर आए तो उस वक्त हर जगह जो है रोमी हुकूमत थी। And let me tell you, that was a terrible time. और ये बहुत ही एक खतरनाक वक्त था। And if you want to know a little bit, let me talk about that. और That अगर आप इसके बारे में politically, थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। politically, it was kind of a peaceful time, settled world. सियासी तौर पर देखा जाए तो ये एक बड़ा ही पुरअमन जो है वो दौर था। For several years, no war was fought. क्योंकि कई सालों तक जो है कोई जंग नहीं हुई थी। It was a unified world. और ये एक ऐसा जो दुनिया थी जो जिसमें सब लोग मुत्तहिद थे। And of course, that helped the spread of the gospel so fast. और यकीनन इससे अंजील की जो फैलाव था उसको बहुत ही मददगार ये साबित हुआ। Socially, it was a small world. अगर समाजी तौर पे देखा जाए तो ये एक छोटी सी दुनिया थी। It was a shrinking world.
आप ये कह सकते हैं कि जैसे दुनिया एक जगह पर सुकड़ कर रह चुकी थी। Romans, they had built such beautiful roads all over. और हम देखते हैं कि रोमियो ने बहुत ही खूबसूरत सड़कें जो हैं अपनी सारी सल्तनत में बना दी। Some historians tell us there were about 50, a network of 50,000 infrastructure roads all over. कुछ मौरख हमें ये बताते हैं कि तकरीबन 50,000 किलोमीटर की जो है वो सड़कों का एक जाल था, एक निजाम था, आप कह सकते हैं उनके दौर में। And of course, because of the roads, commerce, business was growing. और बेशक इन अच्छी उम्दा सड़कों की वजह से जो तजारत या कारोबार जो था वो बड़ा ही ज्यादा फैल रहा था। And the Greek language was spoken everywhere. और जो यूनानी जुबान थी इस लिहाज से फिर हर जगह बोली और समझी जाती थी। So the world was so small because of the roads. तो आप ये दे सकते हैं कि इन कुशादा और खूबसूरत सड़कों वजह से अब दुनिया छोटी सी मालूम हो रही थी। People could travel without a passport. No passport was needed. You could travel Africa, you could travel Europe, you could हम्म। travel to Asia, you could travel anywhere. और ये ऐसा दौर था जिसमें लोगों को दूसरी जगहों पे जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती थी। वो यूरोप जा सकते थे, अफ्रीका आ सकते थे, और भी जिस मुल्क में वो जाना चाहते थे वो जा सकते थे। Now, at the same time, morally, it was a sick world. लेकिन इखलाकी तौर पे देखा जाए तो ये एक ऐसा मुल्क था, ये ऐसी दुनिया थी जो इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार थी। Can you imagine the first 15 emperors, Roman emperors, 14 out of the 15, they were homosexual. अगर गौर कीजिए यहाँ पे कि 15 जो इनके बादशाह या शहंशाह थे उसमें से जो 14 ऐसे थे जो कि हम जिन परस्ती में शामिल थे। Including Julius Caesar. और इसमें जो जूलियस कैसर अगस्त जो जूलियस था वो भी इसमें शामिल था। Divorce was common, just like marriage. और हम देखते हैं कि जैसे शादियां बड़ी आम थी इसी तरह जो तलाक थे वो भी बहुत आम थे। If you want to really understand what kind of world was that, we have to read the book of Romans, chapter number 1. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस दौर में दुनिया की हालत क्या थी तो जरूर है कि आप रोमियो के खत का पहला बाब जरूर पढ़ें। Now, intellectually, it was लेकिन a very जहानत के sad एतबार से, world. सॉरी, Intellectually, it was a sad world. और अकली एतबार से देखा जाए तो ये दुनिया जो है वो अगरचे बड़ी तरक्की याफ्ता थी लेकिन एक बीमारी की हालत में थी। There were isms everywhere, philosophies everywhere. मुख्तलिफ किस्म के अलूम थे, फलसफे थे जो कि हर जगह पाए जाते थे। Like Platonianism, Gnosticism, Epicureanism, Stoicism, Cynicism, अब ism, इसमें जो है ism, ism. प्लेटोनिज्म, एक्रोनिज्म और कई किस्म के अलूम जो है जो नजरियात पाए जाते थे। And what is the philosophy? अब फलसफा क्या है? A system of thoughts. कि ये सोच का या ख्यालात का एक निज़ाम है। So what they did, they put aside God and they tried to learn everything by their own thoughts. अब होता ये था कि वो खुदा को छोड़कर अपनी सोच से, अपनी अकल से, अपनी समझ से चीजों को समझना और उनको करना वो चाहते थे। And because of all these philosophies and isms, people, they were sick and tired because nothing was making sense. अब इन सारे जो फलसफी और नजरियाती बातों की वजह से क्या था, लोग बीमार पड़ चुके थे और इनसे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। Spiritually, it was a seeking world.
और रूहानी तौर पे देखा जाए तो वाकई ये एक बीमार दुनिया की जो है वो निशानदही करते थे। People, they were sick and tired. They were disappointed by their religions. और हम देखते हैं कि लोग अपने इन मजहबी अकायद की वजह से बीमार हो चुके थे और थक चुके थे। In the Roman temples, there were statues. और जो रोमी जो इबादत खाने थे वहां पे बुत पड़े होते थे। And these statues, they were statues of human beings. And people, they were thinking, how this man or a woman who used to be a human being just like me can help me. और लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि ये जिसका बुत, जिस इंसान का बुत जो है उन्होंने जिनको इबादत के लिए रखा होता था, कि वो सोचने लगते कि किस तरह से कि हमारे जैसे इंसान हैं और ये हमें जो है वो बचा सकते हैं। So human worship was common. तो ये जो इंसानी या इंसानों की इबादत थी वो बड़ी ही आम थी। Even Caesar called Lord and God. He had given और himself a title, Lord God. और हम देखते हैं कि कैसर को भी जो है वो खुदावन का लफ्ज जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। He took this word, took this title for himself. और हम देखते हैं कि कैसर ने अपने लिए ये जो लकब जो है ये अपने लिए वो बनाया हुआ था। But people, they were looking for the truth. लेकिन लोग सच्चाई की तलाश कर रहे थे। They were tired to see these human statues in the temples that they could not give them answers they were battling with. The और question they वो were battling लोग with. इन इंसानी मुजस्समों को, बुतों को अपने उन इबादत खानों में देखकर थक चुके थे, क्योंकि ये मुजस्समे, ये बुत जो थे उनको उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे। So that was the world when Jesus came. तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसी दुनिया की हालत थी जब यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए। Do you remember what Jesus said? Jesus said, I am the truth. और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं। Because Jesus is all knowing. Jesus could see that the heart of people, they are looking for, they are seeking truth. So he said, I am the truth. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ का इल्म रखते हैं और वो लोगों के दिलों को भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं। And not only, yeah, the truth and the life. बल्कि राह, हक और जिंदगी भी वो है। Now, if we read the third chapter of the book of Romans, अगर हम तीसरा बाब रोमियो का जब हम पढ़ें, number one, we will learn that God is the creator. तो पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि खुदा जो है सब चीजों का खालिक है। And not only he is a creator because he created everything. और ना सिर्फ वो खालिक है बल्कि वो सब चीजों का बनाने वाला है। Number two, God is the judge. और दूसरी बात जो है वो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो आदिल है, वो मुनसिफ है। He is the God who judges evil. और वो ऐसा खुदा है जो अदालत करता है उनकी जो कि बुराई करते हैं। That's why he has given laws, commandments. इसीलिए तो खुदा ने जो है कवानीन और शरीयत जो है वो दी ताकि ऐसी चीजों की अदालत करें। So the man had tried to take this understanding and this revelation that God is a creator out of their life. और हम देखते हैं कि इंसान इस चीज की कोशिश कर रहा था कि वो ये समझ सके अपनी जिंदगी के खुदा जो है वो खालिक है। And what happened? Idolatry started to come in. और हम देखते हैं इसी वजह से जो है वो
बुत परस्ती जो है वो लोगों की जिंदगी में आ गई। Every time people they take God out, idolatry takes place. और जब भी याद रखिए कि लोग खुदा को अपनी जिंदगी से निकालते हैं तो उस तरह से जो बुत परस्ती जो है फिर उनकी जिंदगी में आ जाती है। And remember, after idolatry comes immorality. और याद है कि जब बुत परस्ती आती है तो उसके साथ बद इखलाकी भी आ जाती है। People they are blinded, they do not know what they do, what they say, how they behave. क्योंकि लोग अंधे हो जाते हैं और उनको ये समझ नहीं लगती कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो करते हैं, क्या वो बोलते हैं। That was a time when Jesus came. और ये वो दौर था जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। Now, not only Paul is writing that God is judge, but Paul is also writing number one, God is the creator, number two, God is the judge. और हम देखते हैं पालूस इस बात पे लिखता है कि खुदा ना सिर्फ खालिक है बल्कि खुदा अदालत भी करता है। But when God is a judge, how can we escape the judgment of God? That was a question तो मेरे people अजीजों had. याद रखिए कि जब खुदा जो है वो सच्चा आदिल है तो किस तरह से मुमकिन है कि हम उसकी अदालत से बच जाएंगे। So, number three, God is the savior. और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो निजात दहिंदा है। God sent his son to become a sin for us who did not know any kind of sin. आमीन। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और वो हमारी खातिर गुनाह बन गया, जो कि गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारी खातिर गुनाह बन गया। Now, let's complete these verses, the book of Romans, chapter number 20. But now, the righteousness of God, apart from the law, is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Verse number मगर अब 21. शरीयत के बगैर खुदा की एक रात भी जाहिर हुई, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से हुई है, से होती है। Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believes, for there is no difference. यानी खुदा की वो रास्तबादी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। Do you understand how the kings and the emperors they were trying to elevate themselves from the human being and making this picture to the common people? Oh, they are the higher, they are the sinless, they are the spotless. That's why Julius Caesar had given him a title, Lord God. आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस दौर में जो बादशाह या शहनशाह थे उन्होंने किस तरह से अपने आप को आम लोगों से, इंसानों से बरतर वो आला बनाने की कोशिश की। और इसी तो हम देखते हैं कि कैसर ने अपने लिए जो खुदावंद या मालिक का जो एक लक़ब था वो अपने लिए बना रहा था और वो ये सोच रहा था कि वो आम लोगों से जो है आला और बरतर है। That's why the Bible says in verse number 23, for all mean all, emperors, kings, queens, prime ministers, presidents, simple people, all have sinned and fall short of the glory of God. इसी तो मेरे अजीजों यहाँ पे हम तीसरे बाब और उसकी इस आयत में हमने देखा कि सब ने, और सब का मतलब है सब ने, यानी वो बादशाह है, वो शहनशाह है, वो कोई भी दुनिया का शख्स है, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। And the word fall short mean God's standard. Nobody could come to God's standard. Everybody was lower to the required God's standard. और यहाँ पे जो महरूम का लफ्ज है उसका मतलब है खुदा का एक मयार है कि कोई भी उस मयार पर पूरा नहीं उतरा, इस वजह से वो लोग महरूम रह गए। Verse number 24, being justified freely by his grace through the redemption
that is in Jesus Christ. और 24वीं आयत की तरफ गौर कीजिएगा, मगर उस फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यसु में मैंने मुफ्त में हमें रास्तबाज ठहराए जाते हैं। Now, just see the word redemption here. Through the redemption, अब यहाँ पे जो लफ्ज मखलसी है, जरा उस पर गौर करें। we are justified by redemption, through the redemption in Christ कि Jesus. हम मखलसी के वसीला से रास्तबाज ठहराते हैं। Do you know what word redemption mean? आपको पता है मखलसी का जो लफ्ज है उसका क्या मतलब है? The word redemption mean to buy back. और मखलसी का मतलब ये है कि कीमत देकर जो है वो आजादी हासिल करना। To pay the penalty or pay the amount that is required and to buy back. इसका मतलब है कि आप अपने जो है वो फिदिया आप देते हैं, कीमत अदा करते हैं और अपनी आजादी वापस हासिल करते हैं। Now, at that time, slavery was very common. और उस दौर में जो गुलामी जो थी वो बहुत ही आम थी। In one market, there were probably 30,000 slaves. और एक मार्केट थे, उसमें तकरीबन को 30,000 गुलाम थे। So people, they were going to buy slaves from there and bringing them home. और होता ये था कि लोग उस बाजार में जाते और वहां से गुलामों को खरीदते और फिर अपने घरों में लेकर आते थे। But imagine somebody good. He felt, I don't want to bring them home. I want to pay to the slave master the amount required and want to set these slaves free so they can have free life. तो जरा सोचिए, कोई ऐसा शख्स जो बहुत अच्छा हो और वो ये सोचता हो कि हाँ, मैं घर नहीं तामीर करूंगा बल्कि मैं उस गुलाम के जो मालिक है उसको पैसे में अदा करूंगा और उस गुलाम को आजाद करवा दूंगा। This is what Jesus did. मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए यही किया। We were slaves to sin. We were slaves to Satan. याद रखिए, हम गुनाह और शैतान के गुलाम थे। Now Jesus paid the price on the cross with his precious blood. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत खून से सलीब पर इसके लिए कीमत अदा की। And after paying this Amen. price, he redeemed us. He bought us back. और वो कीमत अदा कर उसने हमें मखलसी छुटकारा दिलाया और हमें हमें खरीद लिया। And now we don't belong to sin and Satan if we believe in Jesus. हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो अब गुनाह और शैतान के हम अब गुलाम नहीं रहे हैं। Now we belong to Jesus and we are sons and the daughters of Christ Jesus. Hello? Are you there? Yes, sir. I'm here. Yes, sir. Please go on. No, because of the price Jesus has paid on the cross for us. No, if we believe, we have faith in Jesus, we are sons and daughters of the living God. हमारे अजीजों, अगर हम इस बात पे ईमान रखते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत अदा कर दी है, तो अब हम उस कीमत अदा करने की वजह से हम उसके बेटे और बेटियां हो गए हैं। This is the gospel. और यही तो अंजील है। This is the gospel that needs to be shared. और यही वो अंजील है जिसकी हमें मुनादी करनी है। That all have sinned. कि सब ने गुनाह किया and fall short of the glory of God. और खुदा के जलाल से महरूम हैं।
Now, Romans chapter number 6, verse number 23. अब अगर रोमियो का 6 बाब और उसकी 23, Yeah. हम उसकी 23वीं आयत को देखें, 6 बाब और उसकी 23वीं आयत. यस, Now Should I read Paul that? is writing, for the wages of sin is death, but the free gift अब- of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. आमीन. अब पौलुस यहाँ पे लिखता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है. Now, आमीन. this is what we are learning, that sin have consequences. और यही बात तो हम सीख रहे हैं कि गुनाह के जो है वो नताइज भुगतने पड़ते हैं. We cannot take sin light in life. याद रखिए, कभी भी गुनाह को हमें जो है गैर संजीदा तौर पे हमें जिंदगी में नहीं उसको लेना चाहिए. Wages of sin is death. याद रखिए कि जो गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है. Now, Romans chapter number 5 and verse number 8. अब रोमियो का खात उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत को अगर हम देखें, But God demonstrated his own love for us in this, while we still sinners, Christ died for us. आमीन. लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ. आमीन. Imagine the demonstration of God's love on the cross is the humanity is sinful, but Christ, the sinless and the spotless Lamb of God, was sacrificed on the cross for us. जरा खुदा की मोहब्बत की खूबी को देखें कि किस तरह से उसने सलीब पर अपनी मोहब्बत की खूबी को जाहिर किया कि मसीह जो कि खुदा का बर्रा है, जो कि बेदाग है, बेऐब है, उसने अपना कीमती खून बहाकर हमें हमारी कीमत जो है उसने अदा कर दी ताकि हम निजात पा सकें. Romans 8, verse number 2. रोमियो उसका 8 बाब और उसकी दूसरी आयत देखते हैं. Paul is writing, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ. पहली आयत में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं. There were people who got saved, gave life to Jesus. They were justified by God. They were redeemed by God. But after the salvation, they were still feeling condemned. अब हुआ यूं कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने तौबा करके निजात पा ली थी, लेकिन चूंकि खुदा ने उनको छुड़ा लिया था, उनकी मखलसी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो ऐसे एहसास में थे कि जैसे वो कोई गुलामी की हालत में है. तो इसलिए पौलुस यहाँ पे पहली आयत में उनको ये बयान करता है कि जो कोई मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. ये दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया. आमीन. Now, there are universal laws. अब कुछ आलमगीर कवानीन है. The law of gravity, let's say the law of gravity. मिसाल के तौर पे देखें, जो कशिश शकल का जो एक कानून है. And the law of gravity tells us everything that goes up eventually comes down. अब कशिश शकल का जो कानून है वो ये कहता है कोई भी चीज जो हम ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं वो मुड़कर वापस जमीन की तरफ आती है. Because the pull of the earth pulls everything towards it. क्योंकि जो जमीन की कशिश शकल है वो हर वो चीज जो उससे दूर फेंकी जाती है उसको वापस जमीन अपने मरकज की तरफ खींच लेती है. For example, let's take a needle. We just try to throw a small needle and this needle will come back to the earth. मिसाल के तौर पर एक छोटी सी सुई भी जो है अगर आप उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस जमीन की तरफ खींची चली आती है. So for centuries, human being understood that everything that goes up falls down.
तो कई सदियों से इंसान इस बात को समझ चुका है कि कोई भी चीज जो कि ऊपर आसमान की तरफ फेंकी जाती है वो वापस जमीन की कशिश की वजह से नीचे की तरफ आती है। But one day, लेकिन एक दिन Wright brothers, they understood another law. जो राइट ब्रदर थे उन्होंने एक और कानून जो है वो सीख लिया, And this we call the law of aerodynamics. और इसको हम एक कानून समझते हैं जिसको फिजाई कानून जो है, या आप कह सकते हैं इसको जो कि उड़ने के ताल्लुक से एक कानून है वो कहा जाता है। The law of push. और इसका मतलब है दबाव का कानून। Now, under the law of aerodynamics, a big aeroplane carrying 300 people with tons and tons and tons of luggage stays in the space and keep flying. अब ये जो कानून है इसका मतलब है कि 300 के करीब अफराद और टन, हजारों टन भारी जो जहाज है वो इस कानून के तहत आसमान में जो है वो रह सकता है और सफर कर सकता है। No, the law of gravity tries to pull. अब आप देखते हैं कि कशिश शकल के कानून के मुताबिक जो जमीन की कशिश है उसको अपनी तरफ खींचती है, But the law of aerodynamics pushes it forward, pushes it higher. लेकिन उसके बरअक्स जो एरोडायनामिक्स का जो कानून है वो उसको ऊपर की तरफ उठाता है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It means that humankind was under the law of sin and death. इसका मतलब है कि इंसानियत जो है वो गुनाह के और उसके कर्ज के नीचे थे। Everybody was under this sin, under the law of sin and death. और हम देखते हैं कि इसका मतलब यह कि हर इंसान जो है वो गुनाह और उसके कर्जे के नीचे था, Until Jesus came, और लेकिन एक दिन जब यीशु आ गया he introduced another law. उसने एक और कानून मुतारिफ करवाया, And this law is called the law of spirit and life. और इस कानून का नाम है रूह और जिंदगी का कानून। And everyone who believes in Christ Jesus, और हर कोई जो यीशु अल मसीह पर ईमान रखता है, when we trust the Lord, जब हम उसे पे भरोसा करते हैं, when we come to God जब हम खुदा के पास आ जाते and हैं we say, Jesus, forgive my sins. और कहते हैं कि यीशु तू मेरे गुनाहों को माफ कर, Jesus, I know that I'm a sinner. और कहते हैं कि हाँ यीशु मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, I need a savior. मुझे निजात दहिंदा की जरूरत है, Jesus, cleanse me with your blood. और यीशु मुझे अपने खून से साफ और पाक कर दे। So what Jesus does, तो अब यीशु क्या करता है? Jesus cleanses us with his precious blood, and he आमीन। और justifies यीशु us, अपने makes us righteous before God. और खुदा यीशु मसीह अपने पाक खून से हमें धोकर पाक और साफ कर देता है और खुदा के सामने हमें रासबाज बनाकर पेश करता है। And in आमीन। no time, we come under the law of spirit and life. और बगैर किसी ताखीर के हम रूह और जिंदगी के कानून के नीचे आ जाते हैं। We, from the law of sin and death, we immediately come under the law of spirit and life. और फौरी तौर पे हम गुनाह और कर्ज के कानून से निकलकर जिंदगी और रूह के कानून के आ जाते हैं। Do you understand me? आप मेरी बात समझ रहे हैं? This is the gospel. यही मेरे अजीजों अंजील है, And this is the gospel needs to be preached. और यही अंजील है जिसकी हमें मुनादी करना है। All have sinned कि सब ने गुनाह किया and fall short of the glory of God. और खुदा के जलाल से महरूम रहे। When we come under the law of spirit and life, जब हम रूह और जिंदगी के कानून के मातहत हो जाते हैं, the law of sin and death is cancelled. तो याद रखिए गुनाह और उसके कर्ज का जो कानून है वो मनसूख हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। Romans
chapter number 10, verse number 9. रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। If you declare with your mouth that Amen. Jesus Christ is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. और यहाँ पे लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। Amen. You see? So what we need to do, we just need to confess with our mouth. Amen. We need to confess with our mouth. Hello? Are you there? Hello, hello? Hello, hello? Pastor Imran, are you there? Yes, sir. I'm here. I'm back, sir. Okay. So when we confess with our mouth कि जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं and believe in our mind, in our heart, और अपने दिल से इस चीज का जो है वो हम इकरार करते हैं that God raised Christ Jesus, we are saved. कि खुदावंद ने जो है यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया तो हम निजात पाते हैं। Now Romans chapter number 10, verse number 13. अब इसकी 10वें बाब और उसकी 13वीं आयत को हम देखते हैं। For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. और लिखा है क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। Imagine Romans chapter number 3, verse number 23, we just learned all have sinned. जरा याद रखिए कि हमने रोमियो की 30वें बाब और उसकी जो है वो 30वीं आयत में हमने ये सीखा था कि सब ने गुनाह किया। Now we read in Romans 10, verse number 13, that everyone who calls. आमीन। और अब हम 10वें बाब और उसकी 13वीं आयत में पढ़ रहे हैं कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, it doesn't matter the age, it doesn't matter the color or creed or religion or ritual they are practicing, all who calls on the name of the Lord shall be saved. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा रंग आपका है, क्या नस्ल आपका है, क्या रसूमात आप अदा करते हैं। यहाँ पे लिखा है जो कोई भी नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। So this is what I call Romans road, helping us to go through the Paul's letter to Romans and learn what is the gospel. और इसलिए मैं कहता हूँ ये वो शाहराहें हैं, ये वो रास्ते हैं रोमियो के खत के वसीला से जो हमें पालूस हमें लेके जाता है, जिससे हम जो है निजात के पैगाम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। I hope you have understood that. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सारी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। How much time I have before I move forward? So it's 8:20 now. Oh, Dr. it's Charles can already- tell us because The time is gone? yeah, we have exceeded the time. Oh my God. Even I tried to put alarm. Okay, no problem. Let's have a word of prayer. आए हम दुआ करेंगे। Father, we thank you for this time. ऐ बाप हम तेरे इस वक्त के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you that you are helping us to understand what is the gospel. खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि अंजील की मुनादी करना क्या है। Before we learn the power of the gospel, you want us to understand what is the gospel. इससे पहले कि खुदावन हम अंजील की कुदरत को जाने, तू चाहता है कि हम जो है ये समझे कि अंजील दर हकीकत है क्या। Father, we want to thank you for your son who has done everything for us. बाप हम शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। And because of your son Jesus,
we can come to you and we have access with you. और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे पास आ सकते हैं और हमारी रसाई तेरे तक होती है। And because of your son Jesus, we are your children. और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाते हैं। I want to thank you for every single man and woman here. और मैं हर एक मर्द और जन के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं यहाँ पे जो मौजूद है, Your calling is upon them. कि तेरी बुलाहट उनके पास है खुदा। You are equipping them and building them and training them. कि खुदा उनको तैयार कर रहे हैं, उनको लेस कर रहे हैं एक बड़े काम के लिए, And you are going to use them. और खुदा तू उनको इस्तेमाल करने को है। Thank you, Lord. खुदा तेरा शुक्र हो। I want to thank you for Evangelist Imran, Lord. Bless him for his ministry of interpretation. और खुदा तेरे खादम इमरान के लिए शुक्र अदा करते हैं और इस खिदमत के लिए जो कि तर्जमान की खिदमत है, खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। Thanक you, Lord. In Christ's name I pray. यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। Amen. 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 God Thank you, bless you, sir. everyone. Sir. God bless you, sir. Very Thank wonderful. you so much. Thank Really you so much, encouraging, sir. Imran. It's been such a joy and Talk to know privilege. today, sir. Yeah, God it's bless. a privilege, sir. Bye-bye. Sir, bye-bye, sir. So, any assignment for the students? I would like everybody to go through the book of Romans and the Bible verses I have given. Mm-hmm. And Okay. So write, the whole letter? no, these Bible verses only. Okay. तमाम स्टूडेंट ये जो पास्टर साहब ने जो आयात आपको बताई हैं, पास्टर साहब कह रहे हैं कि आप इन तमाम आयात को बगौर आप पढ़ें। And on the top of that, I would like them to read first chapter of the book of Romans. और इससे भी ज्यादा मैं ये चाहता हूँ कि जो रोमियो का खत है उसका पहला बाब आप सारे का सारा आप जरूर पढ़ें। And just write a small summary of that Romans. और ये जो सारा हमने जो पढ़ा है इसके एक आप समरी जो है आप लिखें। That's from the chapter number 1. How that word पहले was. चैप्टर में से। Sir. Thank you so much. Sir, thank you so much again. God bless you. Bye-bye.